होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो क्वेश्चन अपन कर चुके थे, उसके बाद एक दो और क्वेश्चंस लिख लो, करके देख लेना घर में। The area bounded by a curve, the area bounded by a curve, comma the x-axis and two ordinates the area bounded by a curve, the area bounded by a curve, comma the x-axis and the two ordinates, one of which is constant, comma the other variable, one of which is constant, comma the other variable is equal to, one of which is constant, comma the other variable is equal to the ratio of the cube, is equal to the ratio of the cube of the variable ordinate is equal to the ratio of the cube of the variable ordinate is equal to the ratio of the cube and of the variable ordinate to the variable abscissa, to the variable abscissa. The area bounded by a curve, comma the x-axis and two ordinates, one of which is constant, comma the other is variable, is equal to the ratio of the cube of the variable ordinate to the variable abscissa. Find the curve if it passes through 1, 0. Find the curve if it passes through 1, 0. If it passes through 1, 0. Next question. Find the curve such that the ordinate, find the curve such that the ordinate of any of its points, find the curve such that the ordinate of any of its points is proportional mean. Find the curve such that the ordinate of any of its points, find the curve such that the ordinate of any of its points is the proportional mean, is the proportional mean between the abscissa, and the sum of the abscissa, is the proportional mean between the abscissa and the sum of the abscissa and subnormal at the point. Find the curve such that the ordinate of any of its points is proportional mean between the abscissa and the sum of the abscissa and subnormal at the point. Next is find the curve such that the ratio of the subnormal at any point, find the curve such that the ratio of the subnormal at any point, find the curve such that the ratio of the subnormal at any point to the sum of its abscissa and ordinates, find the curve such that the ratio of the subnormal at any point, find the curve such that the ratio of the subnormal at any point to the sum of its abscissa and ordinates, to the sum of its abscissa and ordinates is equal to the sum of its abscissa and ordinate is equal to the ratio of the ordinate. Find the curve such that the ratio of the subnormal at any point to the sum of its abscissa and ordinates, to the sum of its abscissa and ordinates is equal to the ratio of the ordinate, is equal to the ratio of the ordinate, is equal to the ratio of the ordinate of this point
is equal to the ratio of the ordinate of this point to its abscissa. Equal to the ratio of the ordinate of this point to its abscissa. If the curve passes through 1, 0, if the curve passes through 1, 0, find all possible equations. Find all possible equations in the form of y equal to fx. Find all possible equations in the form of y equal to fx. Find the curve for which the sum of the normal and subnormal find the curve for which the sum of normal and subnormal is proportional to the abscissa. Find the curve for which the sum of the normal and subnormal is proportional to the abscissa. The proportionality constant being k. नेक्स्ट हम लोगों ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन देख लिया और कैसे सॉल्व होता है उसके बारे में बात कर ली। एक प्रोफाइल है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या कि फिक्स प्रोफाइल है कि मतलब इसमें ऐसे करने से हो जाता है, ठीक है ना। बाकी वैसे और भी प्रोफाइल्स हो सकते हैं या बाकी ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें अपन को खुद से सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़े सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी हेडिंग लिख सकते हैं आप, इक्वेशंस reducible to homogeneous differential equation. Equation reducible to homogeneous differential equation. तो पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल भी देखा, फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल की भी प्रोफाइल देखे, ठीक है ना। अभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखा और एक पर्टिकुलर प्रोफाइल जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कन्वर्ट हो सकता हो। This is like this, dy upon dx equal to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2। ये देख सकते हो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्यों? c1 c2 वजह से। इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। इसमें एक स्पेशल केस ऐसा है कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम हो जाए, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर सेम हो जाए तो उसको आप कुछ मान सकते हो, सपोज कर लो k। तो आप फील लेके देख लो, a1 क्या हो जाएगा k a2 और ये हो जाएगा कितना k b2, तो k कॉमन हो जाएगा और ऊपर ही बनेगा a2x प्लस b2y और यहाँ भी क्या बनेगा a2x प्लस b2y। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन एक दूसरे का k टाइम्स होगा, एक दूसरे का क्या होगा k टाइम्स। तो इस तरह के केसेस में मेरे ख्याल से वही टाइप 2 वाला काम हो गया कि a2x प्लस b2y को कितना मान लो z, और उसके बाद फिर हम लोग बोले सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर लें। समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर इनके रेशियो सेम हो, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो क्या हो सेम, जैसा कि यहाँ मान लो लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, उधर लिखा हुआ 4x प्लस 6y, ऐसा ही तो है ना। तो हम 2x प्लस 3y को क्या मान लेंगे z। ये तो वही वाला फॉर्म हो गया ना कि dy बाई dx इज f ऑफ ax प्लस by प्लस c। तो ये मेरे ख्याल से वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। दूसरा एक इसमें केस है कि ऊपर वाले में कोएफिशिएंट ऑफ y और नीचे वाले का कोएफिशिएंट ऑफ x का सम 0 हो जाए, नहीं हालांकि b1 प्लस a2 किसके बराबर हो जाए 0। तो ये भी केस बहुत इजी है, इसमें आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और अपने आप हो जाएगा। देख सकते हो कैसे कि जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a2x dy, राइट, फिर b2y dy प्लस c2 dy एंड इक्वल टू इधर देखना है a1x dx प्लस b1y dx और प्लस c1 dx। आप देख सकते हो इसमें हर एक टर्म इंटीग्रेबल है, सिर्फ इधर एक a2x dy छोड़ दो आप,
और इधर देखो b2 dy हो गया, c2 dy हो गया, a1x dx भी हो गया, ये वाला नहीं हुआ। और उधर देखना c1 dx हो गया। अब अगर b1 प्लस a2 अगर 0 है तो b1 इज एक्चुअली व्हाट माइनस a2, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लो तो क्या होगा, यहाँ a2x dy पड़ा हुआ है और उधर कितना है माइनस a2y dx, तो इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो a2x dy प्लस y dx दैट इज डिफरेंशियल ऑफ xy। तो आप देख सकते हो टर्म बाई टर्म सब कैसा है इंटीग्रल। तो ये दोनों अगर स्पेशल केसेस हैं तब तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या करना है, अगर b1 प्लस a2 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे ही आप a2 की जगह माइनस b1 या b2 की जगह सॉरी b1 की जगह माइनस a2 रखोगे, अपने आप वो एक टर्म एग्जैक्ट डिफरेंशियल में बदल जाएगा और बाकी सब टर्म बाई टर्म क्या हो जाएंगे इंटीग्रेबल। और अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम है तो वैसा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इन दोनों में से कोई केस फॉलो नहीं कर रहा हो तो क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कमिंग टू द थर्ड पार्ट की अगर ये दोनों में से कोई केस ना हो और जनरल हो अपने पास तो हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग इस तरह के केसेस में शिफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h रख दे रहे हैं, जहां h इज सम कांस्टेंट और कैपिटल X विल बी व्हाट वेरिएबल। ऐसे स्मॉल y को हम लोग क्या रख सकते हैं कैपिटल Y और प्लस क्या आएगा k, जहां k इज अगेन कांस्टेंट और कैपिटल Y फिर से कैसा होगा वेरिएबल। आप देख सकते हो कि d स्मॉल x इज d कैपिटल X और d स्मॉल y इज व्हाट d कैपिटल Y। अभी h और k अननोन है मेरे लिए, अभी हमको नहीं पता कि h k की वैल्यू क्या है, बट अब ये पता है कि h और k कैसे हैं कांस्टेंट। तो इधर की साइड आप देख सकते हो dy अपॉन dx, और x से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a1 कैपिटल X, b1 से मल्टीप्लाई करोगे तो b1 कैपिटल Y, नीचे a2 कैपिटल X और b2 कैपिटल I। अब बोलोगे कि बाकी क्या रह गया, देखना बाकी इसमें a1 h रह गया, b1 k रह गया और प्लस क्या रह गया c1। तो h k को ऐसे सेलेक्ट करो कि a1 h प्लस b1 k प्लस c1 0 हो जाए। बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, तभी हम लोग बोल रहे हैं होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलेगा, क्योंकि इस कांस्टेंट की वजह से ही हम लोग बोल रहे हैं कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं बदल रहा था। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि आप जब आप इसको ये सब्स्टिट्यूशन रखोगे तो यहाँ a1 कैपिटल X के साथ a1 h भी बनेगा और इधर b1 k भी बनेगा और प्लस c1 ही बनेगा। तो हमको h k कैसे सेलेक्ट करना है कि ये 0 और साथ ही साथ अगर डिनोमिनेटर में देखोगे तो a2h और प्लस b2k और प्लस c2, ये भी कितना हो जाए 0। तो अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं h और k। तो h और k अब आपके लिए क्या हो जाएगा 9। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे कैसे, वही y इक्वल टू bx, सॉल्व करने के बाद कैपिटल X कैपिटल Y में सॉल्यूशन आएगा, फिर उसको वापस से रखना पड़ेगा क्या, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस h और कैपिटल Y इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा स्मॉल y माइनस k। अब h और k सॉल्व करके आ जाएगा। लिख लिया, लिख लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। dy अपॉन dx इक्वल हो गया। तो दूसरे वाले में तो पहले वाले में तो वही दिख रहा है b1 प्लस a2 इक्वल टू 0, तो उसमें तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x dy ये वाला टर्म इधर ले आओगे तो मेरे ख्याल से 2 टाइम्स x dy प्लस dxy सॉरी y dx, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ xy और प्लस y dy
तो इंटीग्रेट करोगे टर्म बाई टर्म, तो दिस इज 2xy और प्लस कितना y²/2 और माइनस ये क्या था y ना, ये कुछ गड़बड़ हो गई। ऐसा कुछ है। दूसरा वाला भी आ गया होगा। मेरे ख्याल से इसमें 2x + 3y को z मान लो। तो मेरे ख्याल से तो dy/dx कितना आएगा, dz/dx 1/3 ऑफ ये है ना 1/3 ऑफ dz/dx और माइनस क्या आ जाएगा 2, वहां से क्या निकाल लिया पहले इक्वेशन से dy/dx एंड दैट इज इक्वल टू z - 1 अपॉन कितना आएगा 2z - 5। अब कुछ खास नहीं है मेरे ख्याल से, उसको इधर ले आओ तो 3z - 3 और +2 चला जाएगा ना, मतलब यहाँ लिख रहा हूँ dz/dx इक्वल टू 3z - 3 और प्लस क्या हो जाएगा 2, तो ऊपर कितना जाएगा 5z नहीं 7z हो जाएगा ना, 4z और प्लस 3z और -13। तो मेरे ख्याल से ऊपर आ जाएगा 2z - 5 इंटीग्रेट करना कुछ खास नहीं, नीचे वाले की शक्ल ऊपर बनानी है शायद नहीं, तो मेरे ख्याल से ऊपर लिख दो 7z और 2z चाहिए ना, तो 2/7 करना पड़ेगा, क्या बोलते हो, तो 2z और -26/7 -9/7 है। ठीक है 26 और 9 35 होता होगा, ठीक है। तो अब इसको अलग अलग करोगे तो एक तो सीधा ही हो जाएगा और दूसरा भी लॉग में इंटीग्रेट हो जाएगा। तीसरा वाला भी वैसे ही ट्राई करके देख लेना, मेरे ख्याल से अगर नहीं किया हो तो ठीक है ना, तो हो जाएगा वो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड सवाल भी खूब सारे आते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान से देख लो। वैसे कुछ खास तो नहीं है, ठीक है ना, बट फिक्स्ड फॉर्मेट है, उसको समझना जरूरी है। पहले तो डिफाइन करते हैं किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सी बात क्या है कि जितने भी डेरिवेटिव्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, इन सब की डिग्री 1 होनी चाहिए। ऑल द डेरिवेटिव्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट अकर इन विच डिग्री 1 एंड दे शुड नेवर बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, और वो साथ में कहीं भी मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लोग क्या बोल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे देखना can we call this as a linear differential equation? This can be called as linear differential equation क्योंकि देख सकते हो कि जहां भी डेरिवेटिव्स हैं all of them have occur in degree 1 only and they are never multiplied together। समझ में आएगा अगर इस तरीके से लिखा हुआ है। Is this linear? हाँ या ना? Yes, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं x के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर ऐसा लिखा रहता ये नहीं, ये लीनियर डिफरेंशियल नहीं हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ क्योंकि इस दोनों का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट। तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो है
क्योंकि y पे हम लोग देख सकते हैं पावर कितना है 2, तो y की डिग्री जिस पर कर रहा है दैट इज 2, तो फिर से इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। समझ में आएगा? तो स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम लोग बात करें, ये समझ में क्या हो रहा है? देख लो, ये जितने इसमें सारे हैं ऑर्डर नहीं है, जितने भी डिफरेंट, और सब किससे मल्टीप्लाइड है? एक्स के फंक्शन से। वहाँ तुम्हारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी दिख रहा होगा, और उधर राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है मैंने 5x। तो ये क्या होगा? जनरल एक्सप्रेशन या जनरल क्या बोल सकते हैं आप? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना? तो लिख सकते हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर, और differential equation is said to be linear if the dependent variable and all its derivatives occur in degree 1 only. If the dependent variable and all its derivative occur in degree 1 only and are never multiplied together, hence the standard appearance of nth order linear differential equation is ये लिखा हुआ है, लिखिए। आगे बढ़े, हम लोग को जो पढ़ना है अपन ने पहले ही बात कर रखा है। अच्छा, डिग्री क्या होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? हाँ, बात काफ़ी टफ लगा, मतलब सोचने में तुम्हें समय भी लगा, अच्छा लगा देख के। तो अच्छा, तो कहाँ पे थे? डिग्री। तो जब सब डेरिवेटिव डिग्री 1 में ऑकर कर रहे थे और मैंने पूछा कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यू ऑल वर लाइक नहीं, तो देख के अच्छा लगा और कितना क्विक रेस्पॉन्स दिया। तो डिग्री क्या रहेगा इसका? 1। लेकिन हम लोग को तो दोनों चीज़ें 1 चाहिए ना, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी क्या चाहिए? 1। क्या चाहिए? ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी क्या चाहिए? 1। तो हम लोग लेंगे अपने काम का बस यहाँ से यहाँ तक रहेगा, फिर नहीं, डॉट डॉट के पहले का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए क्या मतलब है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी भी शक्ल बदल के देख सकते हैं, a1x से डिवाइड कर लो, तो व्हाट यू विल गेट इज dy by dx सम फंक्शन ऑफ x a0x अपॉन a1x इनटू y और इक्वल टू अगेन सम फंक्शन ऑफ व्हाट? x। तो जो फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, क्या फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने का मतलब ही डिग्री तो 1 हो गया, नहीं सुन में आया? डिग्री क्या हो गया? 1। बाकी हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट विल बी ऑफ शक्ल dy by dx plus px, दैट इज अगेन सम फंक्शन ऑफ x, क्योंकि डिवाइड क्या होगा? इनटू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू कितना हो जाएगा? समझ में आएगा? तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें? नहीं, पेन तो लगाना है, लेकिन उसके अलावा और क्या करना है इसको सॉल्व करने में, तो उस पर बात करते हैं। समझ में आएगा? जैसे बहुत बार तो बच्चों को दिख जाता है, एक्चुअली क्या इसमें जो मेन फंडा है, शायद ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, नहीं थोड़ा देखिए। हाँ, तो हम लोगों ने किसी जो मेन फंडा है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में बदलेंगे, नहीं, और ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट पार्ट भी है कि जेई बार बार पूछता है, ठीक है ना? तो बहुत बार क्या है कि इसको देख के पता चल जाता है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ये एक्चुअली किसी चीज का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, थोड़ा सा फील लो तो जैसे दिख रहा है कि इधर y है
तो इधर क्या लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, मतलब कोई एक फंक्शन है जो दिख नहीं रहा है, नहीं अभी फॉर द टाइमिंग, समझ में आएगा। अगर वो अगर यहाँ पे मिल जाता तो इसको एक प्रोडक्ट रूल की शक्ल दी जा सकती है, नहीं समझ में आया कि अगर हम लोग ने एक ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, समझ में आ रहा है क्या बोले, क्योंकि एक तरफ y है 1 एट ए टाइम और dy बाई डी एक्स भी है, समझ में आएगा। तो ये अवशेष रहा होगा डेफिनेटली जिस फंक्शन को हमने क्या किया हुआ डिफरेंशिएट, नहीं किसको किया गया डिफरेंशिएट। वो तो बहुत बार क्या होता है देख के समझ में आ जाता है, बहुत बार अगर नहीं भी देख के समझ में आया तो उस वर्ड को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, ITF नहीं है IF, ठीक है ना। एंड दैट इज e की पावर इंटीग्रल px dx, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में दिख रहा है ना px आ जाएगा, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा, समझ में आ रहा है, इनटू प्लस इनटू इक्वल इनटू, समझ में आया कुछ। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें उधर वो रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड, नहीं खतरनाक वाला लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा इधर वाला राइट हैंड साइड अगर देखें तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है जो भी है, देखो पहचानो, नहीं ये बोल रहे हैं मुझको पहचान लो, नहीं तो अलग है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या e की पावर इंटीग्रल px dx ये समझ में ये क्या हुआ, आप देख सकते हो इसका डेरिवेटिव e की पावर इंटीग्रल px dx इनटू dy बाई dx, समझ में आ गया, और y छोड़ दिया अपन ने, अब इसका डेरिवेटिव e की पावर t का e की पावर t, और जिसको t माना तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा px, तो ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेटिव लिखा होगा। अब आप चाहो तो इसका डिफरेंशियल लिख लो तो इधर dx चला जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, और उधर कितना बन जाएगा आपके पास qx, समझ में आ रहा है। अब दोनों साइड क्या कर दो आप इंटीग्रेट, तो dt का इंटीग्रल तो यही आ जाएगा, तो आप देख सकते हो कि इधर की साइड क्या बन जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब बोलोगे ऐसे क्यों लिखा है आपने, ठीक है क्या दिखाई दे रहा हो तो लिख लो थोड़ा सा पहले। अब बोलोगे उस फॉर्मेट में क्यों लिखा, तो समझना इसको कि आपके पास अगर ये है तो आपको डायरेक्ट ये सब बीच के स्टेप्स खा जाने हैं, आपको डायरेक्टली उस स्टेप पे जंप करके जाना है, कहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और इसको ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि dy बाई dx के बगल में भी कुछ हो तब भी कुछ कर लेना, ठीक है ना, इसको डिवाइड करके इसका कोएफिशिएंट पहले क्या बनाना है 1। लिख रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस भी लिख सकते हो आप और ट्राई कर सकते हो इसको घर पे। पहले क्या हो बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? 1 plus t square dx equal to x into x plus xt square minus t square dt, x at t equal to 1 equal to minus pi by 4।
एक एक करके हम लोग इन प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे पहला सवाल था, एरिया ऑफ द फिगर फाउंडेड बाय अ कर्व द एक्स एक्सिस, तो जैसे कोई भी एक कर्व मान लीजिए एंड इस तरीके से एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व द एक्स एक्सिस एंड द टू ऑर्डिनेट्स वन ऑफ विच इज कांस्टेंट एंड द अदर वेरिएबल। तो ऐसा कुछ मान लीजिए ये कांस्टेंट वाला है x इक्वल टू ए, और एक शायद ये वेरिएबल वाला ले लेते हैं x इक्वल टू एक्स। द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाई दिस शायद बोल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि a टू एक्स एफ टी डी टी, यही होगा एरिया, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड दैट इज इक्वल टू, अब क्या बोल रहे हैं, इक्वल टू द रेशियो ऑफ द क्यूब ऑफ द वेरिएबल ऑर्डिनेट। मतलब ये जो भी पॉइंट है इसको अगर x, y मानिए, तो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या हो गया y, तो रेशियो ऑफ द क्यूब ऑफ द वेरिएबल ऑर्डिनेट टू द वेरिएबल एब्सिस। मतलब ये है, बहुत बच्चे इसको y क्यूब अपॉन x क्यूब लिख लेते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें इस लाइन को ऑर्डिनेट कहा जाता है, ये समझ, जैसे इस पॉइंट का अगर हम ज्योमेट्रिकली ऑर्डिनेट देखेंगे तो ये होगा, और लिखने के हिसाब से ऑर्डिनेट क्या होता है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा जब ये बोल रहा है कि लाइन मतलब ऑर्डिनेट दिस एंड दिस बाउंडेड बाय ऑर्डिनेट दिस एंड दिस, तो मतलब इन दोनों वर्टिकल लाइंस की बात कर रहा है, तो इसलिए उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो ये चीज़ आ रही है, समझ में आएगा। अब हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, टू मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि एफ एक्स आ जाएगा और दैट इज़ वाई डेफिनेटली, और इधर हम लोग को लगाना पड़ेगा वही क्वोशंट रूल। तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर वाई डैश, और माइनस बोलो वाई क्यूब इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाएगा। तो ऐसे तो लग रहा है कि एक y इक्वल टू 0, लेकिन उसका कोई मतलब तो रहेगा नहीं, राइट हैंड साइड नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसको तो हटा ही दो। तो मेरे ख्याल से तो ये आ रहा है 1 ना, तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोलो 3xy एंड dy बाई डी एक्स, और माइनस क्या लिखूँ बोलो, तुम ही लोग बोलो, वाई स्क्वायर, सही है, एक y जा चुका है, ठीक है। तो ये देखो आपका बन गया ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3xy। कुछ मिस्टेक हो गया हो तो देख लेना कैलकुलेशन, बाकी कुल मिला के इसी तरीके से आएगा, और आपको इसी में फिर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा y इक्वल टू वी एक्स मानते हुए। तो आपने डी बाई डी एक्स देखा था, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ गया था, और y इक्वल टू वी एक्स रखने पे मुझे लग रहा है कि ऊपर जो है एक एक्स स्क्वायर भी आएगा ना, और इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे बोलो 3x स्क्वायर इंटू वी, ये कुल मिला के हो जाएगा। इस v को इधर ले आओ तो माइनस v हो जाएगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, लिख लें क्या, 3v नीचे ही रहेगा, और 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर इज माइनस 2v स्क्वायर। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज दिस, तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी 3v अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। चेक कर लीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लीजिए, मेरे ख्याल से नीचे वाले का डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, तो जो भी आएगा उसको हैंडल कर लीजिएगा। और इसमें एक चीज़ और शायद बोल रहा था किसी पॉइंट से जा रहा है क्या, हाँ, इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट 1,0, ठीक है। तो 1,0 से उसको पास करा दीजिएगा, मेरे ख्याल से वो आ जाएगा।
पता नहीं इसका शायद जो आंसर आएगा, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बट हो सकता हो गलत भी हो, तो इसलिए आप उसको माइंड मत कीजिएगा। शायद कुछ ऐसा आएगा, आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चेक ज़रूर कर लीजिएगा, गड़बड़ कुछ हो तो फिर छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो एक तो ये शायद सवाल था, दूसरा कुछ ऐसा था, find the curve such that the ordinate of any of its point, ordinate of any of its point, जो दूसरा सवाल है। तो कोई पॉइंट अगर हम लोग x, y करें तो उसके ऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो y की बात हो रही है, ठीक है ना। ऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, ऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट इज ज्योमेट्रिकल मीन। अच्छा, तो मतलब प्रोपोर्शनल मीन इज ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल मीन इज ज्योमेट्रिकल मीन, ये बेसिक मैथ्स में बताएगा वो, नहीं बताया गया तो सुन लो, और ऐसे बच्चों को पता होना चाहिए। Ordinate of any of its point is geometrical mean between the abscissa and the sum of the abscissa and the subnormal at the point। तो subnormal क्या होता था, my था ना शायद subnormal, यही होता होगा क्या। तो यहाँ पे बहुत बार बच्चे क्या मॉड नहीं लगाते हैं, तो उनका एक कर्व जो है ना गायब हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मॉड वर्ड लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये आएगा कुल मिला के कहानी तो, और इसमें शायद दो चीज़ें बनेंगी। अब प्रोपोर्शनल मीन समझ में आएगा, ज्योमेट्रिकल मीन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स और इंटू एक्स लगाना होता है, एक्स भी लगा लो। बस ये है कि मॉड इधर ओपन करोगे तो शायद प्लस माइनस टाइप की चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आप जैसे प्लस अगर लेकर आगे बढ़ते हो मेरे ख्याल से तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाला, और माइनस वाला क्या देगा शायद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ आ रहा हो। तो अगर कुछ बन जाए एग्जैक्ट डिफरेंशियल टाइप का तो अलग बात है, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स चेक कर लेता हूँ माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, और बाकी आप देख रहे हैं ना कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, एक्स वाई से डिवाइड करके वाई इक्वल टू वी एक्स कर दीजिएगा, अपने आप बन जाएगा, और एक्स वाई डी वाई। तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर डी एक्स पता नहीं यार बनेगा या नहीं बनेगा, अलग बात है, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर डी एक्स इधर जाएगा तो वाई और वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये देख के तो अच्छा ही लग रहा है, पता नहीं सही या गलत क्या है, भगवान जाने देख लेना। तो ये मुझे लग रहा है कि एक्स स्क्वायर डी एक्स तो है, और साथ ही साथ वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई लग रहा है, तो एक एक्स से और मल्टीप्लाई कर लो। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 और टी डी टी हो गया, तो क्या लिखूँ एक्स वाई का होल स्क्वायर ना अपॉन 2, पता नहीं सही है गलत, जो भी है देख लेना है, कुछ तो लफड़ा लग रहा है मुझे। सही है मेरे ख्याल में, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद यही आंसर आएगा। ठीक है, इधर वाले में कुछ हो सकता है क्या, इधर वाले में तो वाई स्क्वायर डी एक्स होगा ना, बाकी ये समझ रहे हो ना कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपका बन ही जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब ये वाई इक्वल टू वी एक्स करके आप ट्रेंड करा सकते हो सवाल को, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई, यही आएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स,
अब ये चीज़ से y अगर बाहर आ जाए ना तो y dx माइनस एक्स डी वाई, इसके साथ क्या चाहिए होता है नीचे, अगर हम एक एक्स स्क्वायर से पहले तो इसके लिए डिवाइड कर लें, तो क्या ये नेगेटिव ऑफ डिफरेंशियल ऑफ y बाई एक्स होगा क्या, एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक लग रहा है, और इक्वल टू डी एक्स आ रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक एक्स से डिवाइड कर लीजिए आप दोनों साइड, अब इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि एल एन एक्स आ जाएगा इधर, या एल एन मॉड एक्स, जो भी लिखना चाहो, और प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और बाई 2 इक्वल टू सी। देख लो यार, ऐसा कुछ आना चाहिए। मेरे ख्याल से ठीक है, चेक कर लेना, और किसी पॉइंट से जा रहा हो तो उसको सेटिस्फाई करा लेना। फिर उसके बाद एक सवाल था आपका, find the curve such that the ratio of the subnormal at any point, ratio of the subnormal at any point to the sum of its abscissa, subnormal लिख ही लेते हैं ना सीधा ही, मॉडुलस एम वाई upon sum of the abscissa and the ordinates is equal to the ratio of the ordinate of the point to its abscissa, ऐसा कुछ बोल रहा है शायद, पता ना, शायद ऐसा ही कुछ कह रहा है। तो ये शायद y dy बाई डी एक्स इक्वल टू शायद हो जाएगा प्लस माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। एक y इक्वल टू 0 कर्व आ रहा है तो उसका तो कोई मतलब रहेगा नहीं दोस्त, क्या, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक तो आ रहा है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ये भी होमोजेनस है, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर एक्स, ये भी होमोजेनस है। इसको आप अलग अलग सॉल्व करके कर निकाल सकते हैं। बहुत बार बच्चे मॉड नहीं लगाते हैं बच्चों, ठीक है ना, और उनका हमेशा एक सॉल्यूशन मिस होता है, तो वो तो इस चीज़ का अपन को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉडुलस वगैरह का प्रॉपर प्रयोग करें, नहीं खुद प्रयोग का पार्ट ना हो जाए। तो इसमें कुछ हो सकता है क्या जुगाड़बाजी एग्जैक्ट का, जैसे एक्स डी वाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, और प्लस वाई डी एक्स आ रहा है, तो एक्स डी वाई और वाई डी एक्स को इधर ले आओ, ये भी लग रहा हो ही जा रहा है, एक्स डी एक्स, और नीचे एक एक्स स्क्वायर फिट कर दो। तो कैलकुलेशन सब सही है तो फिर ये सही होगा, और कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो उसके हिसाब से देख लेना। बाकी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, इसके आगे तो आप लोग इंटीग्रेट कर ले जाओगे, ठीक है। इधर देखें क्या क्या हो रहा है, एक्स डी वाई माइनस एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, इधर भी तो कुछ बन ही रहा है, एक्स डी वाई प्लस, ओ नो ये एक्स है बच्चों, प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। तो ये मुझे लग रहा है डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, सब चंगा सी ये तो आप कर ही दोगे यार, ये तो काफ़ी सिंपल हो गया। चलिए एक और सवाल, जैसा कि आप देख रहे थे कि था, फाइंड द कर्व फॉर विच द सम ऑफ द नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, सम ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो गया आपका मॉडुलस ऑफ y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट, और प्लस क्या था इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सिसा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी दिया हुआ था, इक्वल टू के एक्स लिख देते हैं ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत आ रही है, आप देख लो एक बार। बाकी स्क्वायरिंग तो होगी भैया, इसमें तगड़ा स्क्वायरिंग चाहिए, कुछ और जुगाड़ बजी।
इसको इधर ले जाके स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो इधर तो वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू उधर आ जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक कट भी रहा है देखो, और माइनस 2kx और मॉडुलस ऑफ एम वाई, चेक कर लो आप, ये गया। और यहाँ से मुझे लग रहा है 2kx मॉडुलस ऑफ एम वाई इक्वल टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मुझे जो लग रहा है दैट विल बिकम प्लस माइनस, अभी आगे आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं, और इधर 2kxy आ जाएगा। अब तुम्हारे हवाले, ठीक है, जैसे भी हो कर लेना ट्राई, ठीक है ना। इसका कोई आंसर दे नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा ज़रूर से आगे। फिर इसके बाद कुछ सवाल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में थे, तो वो भी अपन एक एक करके देख लेते हैं। शायद पहला सवाल कुछ ऐसा था, t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो व्हाट यू कैन डू इज नाउ t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर जो भी है डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और इंटू शायद 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी, चेक कर लो आप। तो इसको हम लोग लीनियर में तो इजीली बदल सकते हैं ना, कैसे बदल सकते हैं, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी, राइट, और माइनस एक्स इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, पता नहीं यार दोस्त, देख लेना, माइनस टी स्क्वायर ऐसा कुछ, इससे डिवाइड करना तो पड़ेगा ही। तो लीनियर डिफरेंशियल के हिसाब से तो बन ही रहा है मुझे लग रहा है, डी एक्स बाई डी टी माइनस एक्स और अपॉन टी हो रहा है शायद, इक्वल टू माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, कुछ तो गड़बड़ है क्या। यही था शायद, देख लो एक बार। तो मुझे लग रहा है dt से डिवाइड कर लिया, t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स बाई टी, ठीक ही लग रहा है। इसका क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन टी डी टी, शायद ये 1 बाई टी ही आ रहा है दोस्त। तो y x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे y का रोल x कर रहा है और x का रोल t कर रहा है, और इंटू कितना हो जाएगा 1 बाई टी इंटू दिस, तो मुझे लग रहा है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, तो दैट इज माइनस tan इनवर्स टी। आई होप इसमें एक कंडीशन भी दिया हुआ है, एट t इक्वल टू 1 x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, तो t को 1 रख दो और x को क्या रख दो माइनस पाई बाई 4, तो आई होप माइनस पाई बाई 4, अच्छा प्लस सी भी तो आएगा ना दोस्तों, सॉरी कट ही जाएगा शायद, तो c 0 आ रहा है, तो x इक्वल टू शायद आएगा माइनस टी tan इनवर्स टी, चेक कर लेना दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, दैट इज x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई और इक्वल टू एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, ये कुल मिला के। तो फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का परचम नहीं, इसको करेंगे डिवाइड और क्या करेंगे हवन, नहीं ऐसा कुछ। अब बनाना पड़ेगा आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो व्हेन यू विल डिसाइड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस विल बी ई टी पावर, एक इधर चला जाएगा, एक एक्स स्क्वायर भी निकाल ही लेते हैं, एक एक्स निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे को लगता है 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 बाई एक्स। जस्ट चेक इट आउट, कुछ नहीं किया, इससे एक एक्स निकाल दिया, एक्स स्क्वायर ऊपर सेट कर दिया, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो ln, तो शायद एक्स प्लस 1 बाई एक्स ही आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट। तो y इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सब साफ होते हुए नज़र आ रहा है। दैट इज इंटीग्रल्स करके मल्टीप्लाई देख लेना, ln x आ जाएगा यार, और इसका इंटीग्रल आप सबको पता है x ln x माइनस एक्स, राइट। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल कुछ ऐसा था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या था दोस्त, एक मिनट देख ही लेता हूँ यार क्या था। मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस एक्स था शायद, ये था। ये तो डायरेक्ट ही लिख रहा है प्रोडक्ट रूल ही लिखा हुआ है, क्या बोलते हो, y इंटू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स। अब फील करके देख लो, 1 एट ए टाइम करोगे तो पहले इसका डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स सुरक्षित, क्या बोलती जनता। और फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक बार तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x साइन एक्स, वाई है देख लो बाहर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और फिर एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब ये जो पूरी साइड है ना, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है, यही बन जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा, और इधर आपका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और इन सब का कर ही सकते हो, ठीक है ना। आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी, आई होप, वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स, जो कि दिख भी रहा है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स लिखा हुआ इसलिए दे रहे हैं, प्लस 2x cos x प्लस c, राइट। तो ये भी हो जाएगा। एक थोड़ा सा उल्टा वाला था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो कभी कभी क्या होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में x और y अपने रोल इंटरचेंज कर लेंगे और आप जो है परेशान होते रहेंगे। जैसे इसमें देखो यही हो रहा है कि x और y रोल इंटरचेंज कर रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है, बस सॉल्यूशन में रोल इंटरचेंज कर दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। जब हम e की पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स लिखते हैं, वो पी वाई डी वाई लिख दीजिए, ये देखिए। तो आप देखोगे, फील करोगे, जहाँ x था वहाँ y, जहाँ y था वहाँ x हो रहा है, माइनस देखो cos y आ गया ना, इंटू एक्स, एक्स वाई को इंटरचेंज करके चश्मे से देखेगा ढंग से। तो आई होप इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल माइनस कॉस वाई डी वाई, दिस विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर माइनस साइन वाई। और अब क्या लिखोगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रादर देन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यू शुड राइट x इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू साइन टू वाई, साइन टू वाई को खोल के लिख दो 2 साइन वाई कॉस वाई,
साइन वाई को टी रखोगे, कॉस वाई डी वाई डी टी में चला जाएगा, उसके बाद बाई पार्ट्स लग जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली जो इसका आंसर है वो लिख दूँ क्या, कुछ है क्या, शायद फाइनली इसका आंसर कुछ ऐसे फॉर्म में आता है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ऐसा ही अगला वाला भी था, नहीं तो अगले वाले का मैं आंसर लिख देता हूँ, अगला वाला भी आप कर लीजिएगा ऐसे, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, लास्ट वाला था। ठीक है। और होमवर्क में हम लोग एक तो एक्सरसाइज 1 जो है, एक सेकेंड देखिए,